نسب اور سبب کی بنا پر اس سے متصل ہوا. خدایا توفیق دے کہ جعفر اپنے اعمال، کردار، خلق و خو میں طیب و طاہر رہے. آمین. میں خدا کا بندہ جعفر ابن معتصم عباسی، ہاشم ابن عبد مناف کی اولادوں میں سے، آل عباس کے 10ویں خلیفہ کی حیثیت سے، خدا عز و جل کی بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ امانت دار امت رہوں گا اور دین مبین کا محافظ. شہزادے کی عمر دراز ہو. آج بہت مبارک دن ہے. بہت شاندار تقریب ہے. آج بہت مزہ آیا. خدا سلامت رکھے. بہت مبارک ہو. آج کا دن خلیفہ کے لیے بہت خوشی کا دن ہے. مبارک ہو. بہت خوب. کیا شاندار دعوت ہے. خلیفہ کو بہت بہت مبارک ہو. جب پہ ہنر حجام تھا بہت ہی بے ادبی کی ہے اس نے. بہت مؤدب حجام ہے. نہ اس نے شہزادے سے کوئی بے ادبی کی ہے اور نہ کوئی کوتاہی. ابراہیم کا ڈر خوف ان کے دونوں بھائیوں کی وجہ سے ہے جو کہ ختنہ کے آداب کے بارے میں بچے کو ڈرا چکے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے بھائی کو ڈرایا ہے؟ ختنہ کروانے میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ سنت پیغمبر ہے. آپ جیسے شہزادوں سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ اپنے بھائی کو رسول اللہ کی سنت سے ڈرائیں. سنا تم نے؟ آنکھیں نیچی نہ کریں. مجھے دیکھیے. سنت پہ عمل کرنا ہمارا اصلی فرض ہے. سنت پہ عمل کرنے کے علاوہ 2 نام اپنے ذکر روز و شب میں اضافہ کر لیں. علوی علوی علوی، ترک ترک ترک. جی. ابراہیم کو علوی سے ڈراؤ کہ وہ ہمارے اصلی دشمن ہیں، اور رہے ترک وہ ہمارے واحد حامی اور ناصر و مددگار ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن عناصر ہماری دوستی کی اس پکی ڈور کو کاٹ دے. آپ کو مبارک ہو. مبارک ہو. مبارک ہو. تم کو بہت بہت مبارک ہو. موسیقی بجاؤ کہ یہ جائے عشق ہے، ہر وقت تیرے لیے عشق کی تال فراہم ہے. آگاہ نہیں ہو کہ طوفان رستے سے آ جائے، یہ عیش اپنے ساتھ اڑا کے لے جائے. یہ اولادیں کہاں تمہاری فریاد کو پہنچیں گی، خدا اور بندوں کے آگے منہ کالا ہو جائے. اپنے تخت و تاج کے ساتھ اس طرح بیٹھے ہو، وائے ہو بروز قیامت اور عشق کے جزا و ثواب کے دن سے. یہ کیا بکواس ہے؟ گرفتار کر لو. کیا ہولناک باتیں ہیں. اس ملعون کے منہ کو خونم خون کر دو. اے ملعون و خبیث بے راو، کہاں ہے سنت رسول اللہ؟ وائے ہو تم لوگوں پر کہ دین کو تم سب نے اپنی مانند بدل لیا ہے. بکواس بند کیا کر. رسول اللہ تم لوگوں کی طرح کھاتے پیتے اور پہنتے تھے؟ کیا تم لوگوں کی طرح رہتے اس تھے؟ ملعون تم لوگوں کی طرح رقص و طبل کرواتے جاؤ. تھے؟ علوی نے جب بھی دیکھا ہے شمر دیکھا ہے، قولی اور ہرملہ دیکھے ہیں، یزید دیکھے ہیں، منصور و ہارون و مامون دیکھے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو تم؟ لے جاؤ اسے. کیا کر رہے ہو؟ البساد، اے اندھے، کیسے ایک بے خدا شاعر ہمارے پاس آ کر ہمارے کانوں کے قریب ایسے اشعار پڑھ کر ہمارے وجود کو نجس کر سکتا ہے؟ میں نے ان تمام شعراء کے کلام پڑھے تھے. جو کچھ اس بے ادب نے پڑھا ہے وہ اپنی زبانی اور فی البدی ہے.
آپ دیکھ سکتے ہیں اس شاعری میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہی نہ دیکھی جانے والی علوی قوت ہے کہ تم لوگ اندھے ہو اور نہیں دیکھ رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ علوی ہمارے بستر پر بھی آ جائے اور ہماری نیندوں کو بھی اڑا کر رکھ دے. کیا وہ تم نہیں تھے کہ علویوں کے مرکز کو ختم کرنے والے تھے؟ تو کیا کر دیا تم نے؟ ہادی کو ملک بدل کر دیا تو عبدالعظیم نام کا ایک شخص کھڑا ہو گیا. ہادی کو ملک بدل کرنے کی برکتیں بھی کم نہ تھیں. ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حسنی اور حسینی سادات آپس میں ہاتھ ملا چکے ہیں. پھر ہم نے عبدالعظیم کا نام سنا جو کہ ایک عالم اور دلیر مرد سخنور ہے. اللہ کی مدد سے اس کو بھی گرفتار کر لیں گے. تیراز کے مشتاق ہیں ہم بھی تو دیکھیں اسے. ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ علوی حضرات اپنی چھپی ہوئی قوت کو ظاہر کر دیں. علماء مالکی، شافعی، حنفی اور حنبلی کو میں نے یہ حکم دیا ہے کہ اولاد علی کی قبروں کی زیارت کے خلاف فتویٰ دیں. کیسا فتویٰ؟ مردے کی پرستش کرنا اور طواف کرنا شرک اور حرام ہے. اس کا مقصد؟ قبر حسین ابن علی خلیفہ کے خلاف تمام تر فتنوں کا مرکز ہے. اسے ڈھا دیں اور اس کی جگہ گندم کی فصل اگا دیں. علوی ابابیل کے لشکر کا کیا کرو گے؟ ان ہرے لباس والوں کی آواز اور شور و غل زمین و آسمان کو لرزے میں ڈال دے گی. آپ کا خیال ہے کہ قبر حسین ابن علی کو نہ ڈھائیں گے تو عباسی اور علوی آپس میں دوستی کر لیں گے. اے ہاتھ آل علی، آل عباس کے سائے کو بھی تیر سے مار دے گی. بس کچھ ایسا کریں کہ یہ خفیہ جنگیں ختم ہو جائیں. آمنے سامنے جنگیں کریں اور میدان جنگ میں اتر آئیں. علوی راکھ میں دبی ہوئی چنگاری ہیں. جتنی جلدی سامنے آ جائے گی اتنی جلدی بجھ جائے گی. اے ابلیس، گرا دو، قبر حسین ابن علی کو ڈھا دو. ہاں اس طرف، جلدی کرو، چلو، ہاں جلدی کرو، اس طرف چلو، جلدی کرو. سیدھے کھڑے ہو. ماتم کر رہے ہو. جو کوئی اپنی شکایت کو خلیفہ کے پاس نہ لے جائے اس کا مطلب وہ خود خلیفہ سے بھی شکایت رکھتا ہے. یعنی اپنے آپ پر رو رہے ہو. بہت خوب، روئیے تاکہ ہمیں درد نظر آئے. یہ لوگ زوار ہیں. زوار ہے؟ حجاز کہاں اور عربوں کا عراق کہاں؟ کعبہ حجاز میں ہے، عراق میں نہیں. یہ لوگ پیغمبر کے بیٹے کی قبر کے زائر ہیں. پیغمبر کا کوئی بیٹا تھا؟ ایک تھا جو چھوٹی عمر میں وفات پا گیا تھا. یہ اسی بچے کی قبر ہے؟ نہ سمجھ ہو یا خود کو نہ سمجھ بنا رکھا ہے. زہرا کے لال حسین ابن علی کا نام نہیں سنا تم نے؟ لڑ رہے ہو مجھ سے؟ تم نواسے اور بیٹے کے فرق کو نہیں جانتے بڈھے. کمر ختم ہو گئی ہے تمہاری. رسول سے جھوٹی نسبت دے رہے ہو، ایک بات. خلیفہ کے آدمیوں سے بحث بازی کر رہے ہو، یہ دوسری بات. یقیناً علوی ہو، یہ تیسری بات. عباسی خلیفہ کو غاصب جانتے ہو، یہ چوتھی بات. بہتر یہ ہے کہ گنتی نہ کرو. تمہارے قانون میں تو اگر ہم سانس بھی لیں تو مجرم ہیں. تو پھر سانس مت لو. جو بھی پوچھتا ہوں جواب دو. بد زبانی کرو گے تو تمہاری ناک، کان اور زبان کاٹ دوں گا. نام؟ اسد. صرف اسد؟ کوئی اگلا پچھلا سلسلہ نہیں رکھتے؟ تم نے میرا نام پوچھا ہے نہ کہ سلسلہ. یہ بھی ایک بات ہے. عرب ہو؟ نہیں، عجم ہوں. اور یہ بیہودہ لوگ کہاں کے ہیں؟ میں نہیں جانتا، ان سے خود پوچھ لو. تم لوگ عرب ہو یا عجم؟ عجم ہے. کیا شروع سے ہی عجم ہو؟ ہاں. کہاں کے رہنے والے ہو تم لوگ؟ خوب. باندھو انہیں، سب کو باندھو تاکہ دیکھیں کہ دیوانوں کا
اگلا قافلہ کہاں سے اور کس علاقے سے آتا ہے؟ چلو مشرکو. اے خدایا، ایک مصیبت پر دوسری مصیبت. علوی نے جب دیکھی ہے مصیبت ہی دیکھی ہے. کچھ ہو گیا کیا؟ حجازیوں کے درمیان ایک ایسا سید ہے، یقیناً حسنی سادات نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، جو امام رضا و امام جواد اور امام ہادی کے شاگرد ہیں. عبدالعظیم وہ نام ہے کہ یہ لوگ مدتوں سے اس کا شکار کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں کر پاتے. میں دعا کر رہا تھا کہ حجازی زوار کے درمیان نہ ہوں. اگر انہیں پہچان لیا تو روح ارے قبض کر لیں دیوانو، گے. یہ مقام مقدس ہے، یا مقدس ہے یا نہیں ہے. اگر مقدس ہوتا تو خدا کوئی کوا، چڑیا یا کچھ اور بھیجتا تاکہ ہم لوگوں سے لڑائی کرتے. ہم سے جو کہ ابراہ کے لشکر کی مانند ہیں، اور وہ پرندے ان نر اونٹوں کو بھگا کر لے جائیں. یا تو کوئی آسمانی آفت ہم پہ ٹوٹتی، یا کوئی بجلی گرتی، یا ہم پتھر کے ہو جاتے، تاکہ اس صورت میں تم فاتح اور سرخرو ہو جاؤ. لیکن اگر ہم برحق ہوئے تو پلک جھپکنے میں اس شرک کا گھر زمین بوس ہو جائے گا. تو پھر تم لوگ مغلوب کہلاؤ گے اور ہم لوگ کامیاب کہلائیں گے. بس گرا دو. اگر یہ مزار گر گیا تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارے درمیان مختار کی مثل کوئی ہوتے تو جنگ کرتے. محمد حنفیہ تو کربلا میں نہیں تھے. ارے شاباش، ایسا لگ رہا ہے کہ ثانی شیعہ زیادہ سمجھدار ہیں. شک مت کیجیے گا، وہ کام کریں جو تم لوگوں کے امام نے کیا. آپ جانتے ہیں محمد حنفیہ حسین کے بھائی تھے، مگر کربلا میں نہ تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حسین معجزہ نہیں کر سکتا اور اس لشکر کو ختم نہیں کر سکتا. اطمینان رکھو، قبر حسین کو خراب کرو گے تو نہ پتھر کے ہو جاؤ گے اور نہ لشکر ابابیل کا سامنا ہوگا. قبر حسین کعبہ نہیں ہے. شمر جس نے اس صاحب قبر کا گلا کاٹا تھا، کیا وہ پتھر کا ہو گیا؟ اگر ایسا ہوتا کہ اولاد علی غیب کی مدد سے اپنے جد کے دین کی تبلیغ کریں تو پھر انہوں نے خدا کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا. کیا عاشورے سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہے؟ جب اکیلے بھی ہو تو ہزاروں ہزار لشکروں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور سوئی کی نوک کے برابر بھی نہ ڈرو اور شک بھی نہ کرو. تو معجزہ کیا ہے؟ حسین کا معجزہ یہی ہے کہ خلیفہ عباسی کو ارے واہ، زبردست. عظیم ہے. کیا موقع ہے. اسے آسمان میں ڈھونڈ رہا تھا، زمین پر نظر آ گیا. میری بات دھیان سے سنو، اگر بھاگ گیا تو تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا. جو کو میرے آقا. دیکھو وہ زندہ ہمارے کام آ. جاؤ. جی حضور. کو آگے بڑھاؤ.
फातिमा, मकतब खाला और मुल्ला को भूल मत जाना। तुम्हें ऊंट की कुर्बानी करना चाहिए थी। मैं खुद को भी टुकड़े टुकड़े कर दूं तो भी इन दोनों तक नहीं पहुंच सकेगा। अब नाराज क्यों हो गई हो? तुम्हारा नवासा पैदा हुआ है, एक लश्कर है रिश्तेदारों और पड़ोसियों का। सादात हसनी के बुजुर्ग भी हो, उस पर मोहब्बत और इश्क। आओ खुद इसे बनाओ, मैं देखूं कितना जानते हो। तो हमारा गुस्सा भी इतना था। करबला को मुनद्दम करने के बहाने से अच्छा और कौन सा बहाना हो सकता है? हुसैनी अलियों की रगों में खून जोश मार रहा है। इसने जहाद दीजिए ताकि हम काम तमाम कर दें। क्या प्यारे पर हैं? हुजूर की टोपी है या मुर्गी का ताज? अगर मैं गलती न करूं तो ये सलीका ईरानी सलीका है। अरब के लोग इस तरह की शौक नहीं रखते। बहुत जाज़बे नजर है, कई अजम लोगों को फरीका कर देगा। तुम लोग जिहाद से ज्यादा अपने जंग के लिबास की फिक्र में थे। तुम में से कौन ज्यादा बहादुर है? और मेरा सवाल यह है कि जो सबसे ज्यादा बहादुर है वो मुझ बूढ़े से लड़े। मुझे मगलूब कर दिया तो मैं हुक्म जिहाद दे दूंगा। यह भी हो सकता था कि ये टोपी तुम्हारा सर और लकड़ी तलवार होती। इंतकाम की जगह अपनी फिक्र की हक्कानियत का दिफा करो। मुतवक्किल अब्बासी इसी वजह से अलवी से डरता है। 200 साल हो गए लेकिन अलवी अपने दुश्मन को पहचान नहीं पा रहा। उसने करबला को खराब कर दिया ताकि तुम लोगों को फरेब दे सके। वो इस इंतजार में है कि तुम लोग जंग का लिबास पहनो और मैदान जंग में निकल पड़ो। जाओ और पिछले तल्ख तजुर्बों को दोबारा दोहराओ। तुम लोग जिहाद चाहते हो तो फिरका वारियत की लड़ाइयों से हाथ उठा लो। अल्लाह की रजा वहां है जहां फिरका वारियत का तासुब नहीं। अलवी होने की पहली शर्त मुसलमान होना है। जाइए और इस लोहे की जिरा के लिबास की जगह जिरा इल्म पहनिए या अपने ईमान की हिफाजत करें। इराक ने कभी भी अली और औलाद अली से वफा नहीं की, यहां तक कि वहां की खाक भी अच्छी अमानतदार नहीं थी। फातिमा, इराक की सौगात फकत ये तबाहशुदा तुर्बत नहीं है। बड़ी जहमतों के बाद अपने मौला इमाम हादी नकी की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ हूं। उन्होंने फरमाया कि मैं ईरान की तरफ हिजरत करूं। ईरान? ईरान में कहां? रे क्यों? तब्रिस्तान ज्यादा बेहतर नहीं है? क्यों नहीं, तब्रिस्तान ज्यादा पुरअमन मकाम है, मगर ईरान की धड़कनें रे से चलती हैं। कोई रे में फरियाद करता है तो उसकी आवाज ईरान के हर कोने तक पहुंचती है। एक ऐसी जिम्मेदारी मेरे सर पर है जो कि फकत रे में ही पूरी कर सकता हूं। चलेंगे? चलेंगे नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, गैर मुअय्यन रास्तों से।
जब से इराक से आए हो, जब जब मैंने तुमसे आंखें मिलाई, मैं घबरा गई। नई दुल्हनों की तरह मेरा दिल दहल गया। इसकी वजह मुझे अब समझ में आई। अब तक क्यों मुझे कुछ नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि कमालुद्दीन की पैदाइश की खुशी में खलल पैदा करूं। हम कब दिल से हंसे हैं नाइंसाफ। जब से मैं तुम्हारे घर की बीवी बनी हूँ और आज जबकि मैं तुम्हारे नवासे कमालुद्दीन की नानी हूँ, मेरा एक दिन भी बगैर बेचैनी के गुरूब नहीं हुआ। मेरी एक रात भी खौफो हिरास के बगैर नहीं गुजरी। जिस दिन आप मेरे रिश्ते के लिए मेरे वालिद के पास आए थे, उन्होंने शुरू से आखिर तक आले अब्बास की आले अली से दुश्मनी को मेरे कानों में दोहराया था। ये सब जाने और पहचाने बगैर मैं आपके घर में नहीं आई हूँ। कौन सी ऐसी खता देखी आपने मुझ पे जो मेरे बगैर तर्के वतन करना चाहते? मैंने अपनी आंखों, हाथों और दिल से खता देखी है, मगर फातिमा से हरगिज नहीं। औलाद अली की तकदीर में हिजरत, गुर्बत और तन्हाई लिखी गई है। क्या करूं? तकदीर से लड़ूं? आपसे गिला नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी तकदीर को रो रही हूँ। फातिमा, दुश्मन तुम्हारे आंसू न देखे। आप मुतमईन रहिए। जब से अली के घर की बहू बनी हूँ, मैंने ये अहद किया है कि फातिमा तुज़ ज़हरा की पैरवी करूंगी। कौन हो तुम लोग? इस घर में बड़े मौजूद हैं। लड़ाई है कोई? फरमाइए। हमें घर के बड़े से काम है। इंसानों की बोली जानते हो? हाँ, दिलेर औरत हो, तुम्हारी बात की भी अहमियत है अपनी जगह पर। अब अगर शोर शराबा करोगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जानती हो कि हम इंसान हैं, न दुम वाले न सींग वाले। काम की बात करेंगे और काम की बात सुनेंगे भी। अगर ढंग से बात करने वाले होते तो दरवाजा खटखटाते। हम मेहमान बनकर तो नहीं आए हैं, दरवाजा खटखटाते ताकि शिकार भाग जाए। पूरे घर को देखो। अगर शिकार करने की तमीज होती तो जंगल में पकड़ते, ना कि उसके घर में। खुद को मत थकाओ, हमारे अलावा कोई घर में नहीं है। तुम अब्दुल अजीम की बीवी हो? हाँ। जिस अब्दुल अजीम को हम जानते हैं, उसकी बीवी तुम्हारी ही तरह दिलेर और निडर होनी चाहिए। खुदा की कसम, अपने शोहर को जानती हो? बिल्कुल छलावे की तरह पलक झपकते में गायब हो जाता है। कहाँ है वो? जब तुम्हारा जैसा अक्लमंद सरदार नहीं जानता कि वो कहाँ है, तो मुझ जैसी बेवकूफ औरत जानती होगी क्या? अभी मैं तुम्हें अपनी अक्लमंदी दिखाता हूँ। मुस्लिम बस कर, अब्दुल अजीम ईरान की राह में है। बस कर। ईरान? ईरान 1 मील, 10 मील या 100 मील का तो नहीं है। फरात के बाद से ईरान शुरू हो जाता है, समरकंद से लेकर बुखारा तक। ईरान के किस जगह का आज़म रखता है? कम क्यों उठा रही हो सलमा? आज शिकार बहुत है। इसकी जरूरत नहीं है मुझे ताहिर। ज्यादा ले जाओ और खुश कर लो। जखीरा करने में कोई बुराई नहीं।
مجھ سے زیادہ مستحق بھی موجود ہیں. خدا کریم ہے. خدا قوت دے. یقین کیجئے میں مزاحمت کا ارادہ نہیں رکھتا. مسافر ہوں. میں اور یہ میرا دوست چاہتے ہیں کہ فرات سے گزر جائیں. کوئی پل یا کوئی راستہ جانتے ہیں؟ کوئی چھوٹی کشتی نہیں آپ لوگوں کے پاس جو ہمیں فرات کے اس پار پہنچا دے؟ جو بھی اس کی اجرت ہوگی میں ادا کر دوں گا. سراخوں پر. کافرستان تو نہیں ہے یہ. بندے خدا بات تو کرو. یہی کہہ دو کہ جاؤ مر جاؤ. اے ماتمی توبہ کر. مولا حسین تمہاری آواز کو سن لیں گے. اپنی غلطی کا اعتراف کر. حسین ہمیں معاف کر دیں گے. یا حسین. یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ یہ کیسا محشر بپا ہے؟ ایک چھوٹی سی سزا ہے خاموش رہنے کے گناہ پر. ہم بہرے تھے جو حسین کی حلومن کی دوسری آواز کو نہیں سن سکے. کربلا کو زمین بوس کر دیا گیا. قبر حسین کی طرف پانی کا رخ موڑ دیا گیا اور ہم اپنے آپ میں مصروف رہے. خدا کی پناہ. تم لوگ خدا ہو جو سزا معین کر رہے ہو. ظلم کرنا حرام ہے مسلمان، چاہے خود پر چاہے اپنے علاوہ کسی دوسرے پر. خدا کی پناہ جہالت سے. خدا کی پناہ علویوں کی افراط و تفریط سے. علوی جب خاک حسین پر سجدہ کرتا ہے یعنی حسین کی راہ پر چل رہا ہے، نیت اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو شرک ہے. عالمانہ گفتگو کر رہے ہو مسلمان. تمہارے علم پر اعتماد کریں یا تمہارے لباس پر؟ اپنی عقل پر اعتماد کریں. وہی کی آیات شریفہ میں سے کسی ایک آیت کا مصداق بنیے. بس بشارت دے دو ہمارے ان بندوں کو جو قول کو سنتے ہیں پھر اس کے احسن ترین پر عمل کرتے ہیں. اس کی باتوں سے بخشش کی خوشبو آ رہی ہے. آخر تم ہو کون؟ حسنی سادات میں سے ایک ہوں. لیکن تمہارے جد کا لباس کہاں ہے سید؟ یہ میری تلوار کا لباس ہے. خلفاء کی آشفتگی کی وجہ سے خلفاء کے نوکروں کی لباس کی پناہ لی ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ عبدالعظیم.
तुम लोग दो वजूहात से मुजरिम हो। एक जुर्म तो यह कि तुम लोग अलवी हो जिसका खून हलाल है हुक्म के तहत। दूसरा यह कि तुम लोगों ने एक बागी बूढ़े को फरार करवाने का जुर्म किया जो कि सुर्ख आग है, और यह कि खलीफा की जान के दर पे है। अच्छे जुमले कसना जानते हो सरदार। एक आदमी जो कि खलीफा के आदमियों का लिबास पहना हुआ है और हमसे मदद मांगता है, ये बताओ तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? अहमद, खलीफा का आदमी अकेला और तन्हा रावजियों के गांव में पनाह लेने चला है तो मशकूक शुमार नहीं होगा क्या? यकीनन तुम्हारा झूठ भी मंतकी और तकिया है। तुम लोग आसमानी आफतों के लिपटे हुए जब तक इस तरह के बुड्ढे के साथ हो तो अब जो भी मुसीबत आए तुम्हारा हक है। इसके हाथ पांव बांधकर फरात में फेंक दो ताकि समुद्री जानवरों का निवाला बन जाए। जो कोई भी बाइक बने किसी औरत के या बच्चे के खून बहाए जाने का, उसने गुनाह किया है। तुम लोगों ने अपने अलवी होने का इनकार नहीं किया है, यानी जिहाद किया है। जले हुए घरों को दोबारा बना लेंगे। बच्चे हमसे ज्यादा समझदार होंगे। खलीफा आज कीने का वो बीज बो रहा है जिसका एक दाना कल 100 दाने में तब्दील हो जाएगा। या उसे रे, वो दूसरे सादात की तरह कब्रिस्तान की तरफ क्यों नहीं जा रहा? अब तक हम हरे लिबास वालों को वहम समझ रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा यकीन कर लेना चाहिए। हरे लिबास वालों का लश्कर कयामत तक सिर्फ ताख्त ईरान। रे अब्दुल अजीम, जानते हो क्या मतलब है? जानते हो? ईरान के लोग सब अलवी हजरात के चाहने वाले हैं। रे तमाम ऐसे अलवियों से भरा हुआ है कि हम हजारों रहमतों के बाद उन्हें एतकादी जंगों में मसरूफ करने में कामयाब हुए हैं। अब्दुल अजीम भी तुम लोगों के मुताबिक रजा और जवाद और हादी का शागिर्द रह चुका है, तो फिर वो एक आलिमाना खुतबा के जरिए से जलजला खड़ा कर सकता है। ए बुगाई, अब्दुल अजीम को रेत तक नहीं पहुंचना चाहिए। जाओ और उसको जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। तुम्हें खाली हाथ न देखूं मैं बुगाई। या शेरों की तरह आओगे या अपने कटे हुए सर को लेकर। जी हुजूर। खुदा कुव्वत दे। कहां से आ रहे हैं आप लोग? इस्पाहान से। उम्मीद है कि थके नहीं होंगे, आपकी थकावट दूर हो। इस्फहान के मालियाती काफले में तो कोई बूढ़ा नहीं है। शेख ही आपके साथ नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है आज की रात ऐश ही ऐश है। कोई रुकावट नहीं। ये बताइए, गुजरने का टिकट है आपके पास? हाँ, एक अच्छा सा हुजरा काफले के शोर शराबे से अलग कैसा रहेगा? सिर्फ
सिर्फ नींद मुझे आराम दे सकती है। भाई ये बिकने क्या है? तो खरीदार कौन है? तिजारत में ना तो मैं तय करूंगा जो कि खरीदार हूँ और ना तुम जो कि बेचने वाले हो। ये सब सिक्के और रकम का काम है। ये सब तिजारती मालियात है। जजिया है। फिर तो मुफ्त में भी नहीं आएगा। कुछ गैर मुस्लिम किसान जो कि जजिया नहीं दे सकते थे, फिर उनकी जगह कोई गाय, भेड़ या गधे ले आते और दिखाते मुझे तो ज्यादा पसंद आता। ताजरों का तरीका चीज को बढ़ाने में खास है। जब एक औरत किसी हीरे के ताजर की निगाहों को अपनी तरफ रागिब कर सकती है तो वो कबूतर के अंडे के जितना बड़ा हीरा है। मुश्क वो है जो खुद अपनी बू फैलाए। कितना? सोने के दांत हो तो एक को खरीद लो। वैसे मुझे नहीं लगता तुम नहीं दे सकोगे। अच्छी कीमत दूंगा। देख रहे हो शेख? देख रहे हो? नहा ले और मुंह हाथ धो ले तो क्या कहने इसके। कितने? किसकी कीमत पूछ रहे हो? वैसे अंदाजन क्या कीमत होगी इनकी ये बताओ। तुम पूरे शहर की कीमत तो नहीं मांगोगे ना? 100 सिक्के होंगे दोस्त। क्या मतलब 100 सिक्के? तुम सौदे के लायक ही नहीं हो। मोती पहचानने वाले हो, बेकार बातें मत करो। अच्छा माल है। दोस्तों उठो, चलो सब सामान लपेटो। यहाँ अमनो सुकून नहीं है। चलो, अगर किसी अजनबी के साथ रहना होता तो कले के बाहर ही ठहरते हम लोग। डर डर होता है, चाहे किसी बिगड़े हुए इंसान से हो या ऐसे अजनबी से जिसे ना पहचाने। खुदा की पनाह, तुम काबे के जाहिर हो ऐ मुसलमान। मालो अयाल वगैरह को कुर्बान करके खाना काबा के बजाय खाना दिल की तरफ जाते हो। सबसे पहली शर्त हाजी होने की माफ करना है। जबरदस्ती है क्योंकि मैं काबे का जाहिर हूँ अपने मुंह को बंद कर लूं? हमारा आपस में कुछ वादा था। मुसलमान है, बंदा खुदा है, थका हुआ है, कबूल है, लेकिन उसका खलीफा के आदमी जैसा लिबास क्यों है? आपके साथ कोई नामहरम है जो डर रहे हैं? हाजी दुरुस्त फरमा रहे हैं। ऐसी जगह मुझे दो जो कि गस्बी ना हो। गस्बी क्यों? ये जगह मेरी है। जिस हुजरे का किराया लेकर आपको दिया है वो इनको दूंगा। इनकी कदूरत का क्या करोगे? पुलिस रात में न तुम इस हाजी के दुश्मन होगे और न मैं। ये क्या तरीका है शेख? तुम्हारा दोस्त बेकार माल बेच रहा है। 70 इराकी सिक्कों में मुझे ये बेच दिया। इसकी सफाई सुथराई वगैरह भी तुम्हारे हाथ में। मेरी हिरन फरमा बरदार है, डराओगे तो डर जाएगी। कहाँ गुम हो? अजीब बात तकवा बोल रहा है। अजीब पुरकशिश चेहरा और आंखें हैं इसकी। कपड़े बदल ले तो बिल्कुल उन पैगंबरों की तरह हो जाएगा जिनके किस्से बचपन में सुना करते थे। तुम अब तक बच्चे हो। उसका इजाजतनामा देखा? हाँ ना, मुझे हैरत हो रही है। हुकूमत का आदमी? हुकूमत वाले आदमी गालिबन तुर्की हैं, ना कि कोई और। मुझ जैसा आदमी जो कि खलीफा की रकाब में है, एक पैगंबर को जानता है जो कि आया और गया। इराक की खबरें सुनी है तुमने? वो वाहिद खबर जो मेरा दिमाग खराब कर देती है वो खलीफा का तुर्कों के हाथों मारा जाना है। खलीफा मारा गया? नहीं, मैंने सुना है कि हसनी सादात में से एक शख्स जो कि खलीफा के सख्त तरीन गजब का निशाना बना हुआ है, उसने तुर्कों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया हुआ है। उसका शिकार नहीं कर पा रहे। फरात के तमाम पुल बंद कर दिए ताकि बाहर न जा सके। ऐसा न हो कि ये अजनबी वली सैयद हो। फिर तो मैं बहुत खुशनसीब अरब हूंगा। ये लीजिए आका। अगर किसी और ने हाथ लगाया हो तो मैं गुनहगार हूं। मैं दरिया में हाथ डालूं तो वो भी खुश्क हो जाएगा हाजी साहब। आका साहब, इसकी रोटी खुद हमने बनाई है। न उसकी जमीन गस्बी थी, न उसका पानी चोरी का था। उसका गोश्त, उसकी भेड़ बकरी जो चारा खाती थी, वो सब जायज था और पाक था। आप बिस्मिल्लाह कीजिए।
आपने तकलीफ उठाई, मैं रात का खाना खा चुका हूं। इसके नमक से डर रहे हैं? मैं अपने आप से डर रहा हूं, हजम नहीं कर पाऊंगा, बूढ़े लोग हैं। लीजिए जनाब। मैंने सुना था कि तबरस्तान एक अच्छी सरजमीन है, इसके लोग भी बहुत सखी हैं। बाग खुदा बहुत बड़ा इलाका है हमारा। जहां तक निगाहें काम करें जंगल ही जंगल है। क्या बाबरकत आसमान है, क्या बरसात होती है, क्या बरसात होती है वहां पर। वहां की जमीन तो गोया सोने की है जनाब। वहां के जालिम लोग और उनकी तलवारें चलती रहती हैं और लोगों को गारत कर देती है। एहतियात करो हाजी, तमाम खलीफा के आदमी मेरी तरह नहीं है कि फकत सुने। तबरस्तानी लोग कितने अफराद हैं? 70 अफराद हैं। ज्यादा हैं। ऐसा करें कि ये लोग ना समझें। डालो। ठीक है। दवाए गम है। खुदा ने रिसालत को हम अरबों पर तमाम किया। ये अरबों की तलवार की ताकत थी जो मुसलमान यहूद और मजूस पर गालिब आ गए। हम गालिब आने वाली कौम थे कि दुश्मन हमारे कदमों की आवाज सुनकर ही कोनों में छुप जाता था और उसका दम घुट जाता था। अरब के लिए मौत बेहतर है बनिस्बत तुर्कों की नौकरी करने के। अरब पहले अरब है, बाद में मुसलमान है। मरहबा तुम्हारे तासुब और गैरत पर। तुम्हारे तासुब और कीने से मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ कि तुम अरब की शराफत को दोबारा से जिंदा करोगे। मेरे 70 इराकी सिक्कों का क्या होगा शेख? खुदा का शुक्र है कि हर चीज तवक्को के मुताबिक है। इराक की खबरों को 70 सिक्कों के बदले नहीं लोगे? ये देख कितना परेशान है अब तक। ये लो। मसलहत के तहत आपने इस तरह के कपड़े पहने हैं ना। आपके खौफ खुदा की वजह से शक हो गया था। जब हमारी तरह नमाज पढ़ी आपने तो मुझे यकीन हो गया कि अलवियों में से हो। हम भी शिया हैं। आराम से, तबरस्तानियों को खूब पहचानता हूं। जैदी हैं आप लोग? हाँ, मैं जाती तौर पर किसानियों से इरादत रखता हूं, खास तौर पर मुख्तार सक़फ़ी से। क्या ख्याल है? मैं मुसलमान हूं, मेरे हुज्जत हक अली हैं। माफ करना है मुसलमान, मुझे नींद पूरी करनी है। आपके हुलिये बशरे से लगता है आलिम है। हम भी काबे के जायर हैं और प्यासे। कल सुबह भी खुदा का दिन है। अगर मैं सोता रह जाऊं तो मुझे नमाज के लिए जगा देना। बगैर सिंगार वाली औरत बादलों में छुपे हुए चांद की तरह होती है। गुस्सा नहीं, चांद जैसी अब्र उठाओ। नाज के साथ चांद जैसी अब्र उठाओ, अपनी आंखों से तीर बरसाओ। मोहब्बत का खरीदार हूं रोशन, तुम्हारे गुस्से का नहीं। खंजर। तुम्हारी आंखों का मारा हुआ
जख्म ज्यादा कातिल है। तुम जब चाहो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं जबरदस्ती तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। क्या हुआ शेख? ये आपकी सिंगार करने वाली बदशक्ल औरत की मेहरबानी है। जाओ और जाकर उस अंधी बुढ़िया से कहो कि अपनी कैंची का ख्याल रखा करे। है फिर उन सुरखाब के परों वालों पर ले जाओ इसे उसी तबेले में जहां ये थी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। जनाब मुझे लगता है ये ताजिर कोई गलत इरादा रखता है। ओ, कैसा तलखुलिया बनाया हुआ है। एक मन शहद के साथ इसे नहीं खाया जा सकता। कुछ फायदे के लिए कलाबाजियां खा रहा है। मेरी मानो तो इस लड़की की मोहब्बत को छोड़ दो। अगर लाल लिबास वालों के मजहब से हुई तो बहुत जरी होगी, लाजमन तुम्हें डंक मारेगी। खलीफा के झूठे आदमी के बारे में सोचो, तुम्हारे तिजारती माल को 10 गुना ज्यादा पड़ जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? अपने होश ठिकाने लगाओ जरा। जहां तक हो सके कब्रस्तानियों के रावजियों से नज़ाह नहीं करनी चाहिए। चलो दोस्तों, चलो। अच्छा साहब, कोई अच्छा या बुरा हमसे देखा हो तो दरगुदर करना। खुदा हाफिज। सफर बखैर हो आपका। चले 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 चले। हम बेवकूफ बन गए अहमक। भाग गया वो। जो कुछ भी है फौरन जीन सजाओ और तैयार हो जाओ। जल्दी करो। मेरा घोड़ा, मेरा घोड़ा, मेरा घोड़ा कहाँ गया? क्या हुआ अहमक? कुछ खो गया है तुम्हारा? मेरा घोड़ा चुरा कर ले गए। ये तुम्हारा घोड़ा नहीं है? हाँ हाँ। दुआ करो मेरे हाथ न लगो। करबला की खबर ने तुम्हारे जद की पैरवी करने वालों को खून खौला दिया है, जो कि फकत खून से ठंडा होगा। क्या करें हम इस तकदीर का। इंतकाम के इश्क में जिंदा है। तुम्हारा बुग़्ज़ एक शरीफाना बुग़्ज़ है, मगर अली के मुहिब्बों की मंतक शूर है, न कि तलवार। यकीन है, न कि रिया। तुमने कभी सोचा कि मुख्तार सक़फ़ी क्यों हार गए? मुख्तार हमारी माओं की आगोश का जियाला शेर था। मुख्तार हारा नहीं। जो कुछ उसने किया उसकी आवाज अर्श मुबीन तक पहुंची है। बहुत से गुजरे हैं जिन्होंने कौमी और कबायली जंगों में दिलावरियां दिखाई हैं। क्यों उनमें से कोई नाम बाकी नहीं रहा? उनका तस्करा फौत हो गया। मुख्तार की आवाज और शोहरत आशूरा की बरकत से है। आशूरा ना होता तो मुख्तार को कोई नहीं पहचानता। जिहाद इंतकाम नहीं है, जहां जंग नहीं है। जिहाद की हिकायत बिल्कुल परवाना और चिराग की मिसाल जैसी है। रुक जाओ, सब्र करो। माफ करना हाजी, मेरा मकसद आपके मुख्तार को छोटा दिखाना नहीं था। मेरा मुख्तार भी बहुत बड़ा आदमी और अजीज़े जान है।
ये रास्ता मेरी तकदीर है। जब तवाफ करोगे तो हमें दुआओं से मत भुलाना। मैं इन कपड़ों के लिए शुक्रगुजार हूं। खुदा हाफिज। बहस करोगे तो काबे के बदले में जहन्नुम में चले जाओगे। क्या हुआ? क्या बात है? कहाँ है? कौन? शेर की तुमसे खेल रहे हुए शख्स कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कौन कहाँ है? वही झूठा चोर, वही अय्यार बुढ़ा अपने साथ ले आए ताकि भाग जाए। तुम ताजिर हो, अगर तुम्हारे माल की बात होती तो तुम कह सकते थे। कहाँ गया है वो? है ना मुसलमान रावजी? अरब जाहिल है, इसका कसास कयामत के दिन होगा। यकीनन जानते हो कि हज्जियों का रास्ता रुकना गुनाह है। तुम्हारी कमर तोड़ दूं? हज का मुसाफिर तलवार नहीं ले जाता। तुम लोग काबे के जाहिर हो या खलीफा के कसम खाए हुए दुश्मन। अस्तगफिरुल्लाह। टिड्डा खाने वाले अरब, एक बच्चा भी जानता होगा कि जब रास्ता पुरअमन नहीं तो तलवार ले जाना लाजमी है। रावजी का खून हलाल है, सबको वासिले जहन्नुम कर दो। सुनो लोगों, मेरी बात को गौर से सुनो। हमारा काबा यही है, जो तलवार साथ लाए हो उसे मत रोकना। अगर अकलमंदी करो तो किसी की नाक से खून नहीं बहेगा। हमें सिर्फ घोड़े चाहिए। हाय मैं गैरत हो गया, हाय मैं लुट गया। तुम सब यहाँ खड़ी हो अपनी पेट पूजा करने के लिए? भूखी हो? क्या करें, कहाँ जाएं? यहाँ कम से कम रोटी के टुकड़ों से पेट तो भर जाता है। बेचारी, वो एक रोटी तुम्हें देता है ताकि तुम्हारी जान का शीरा चख सके। जान का शीरा? कुत्तो, बेअदबो, हटो हटो, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये तुम लोगों ने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हटो रुखसाना, हटो हटो। रुखसाना, क्या हो गया? तुम लोगों ने क्या किया? हो गया, गलत हो गया। ये क्या कर दिया है? लूट गया। मेरे साथ क्या हो गया ये?
معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، میں بے گناہ ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ پہ رحم کرو، مجھے معاف کر دو، مجھ پہ رحم کرو مجھے۔ شہداء کو دفن کریں اور وطن چلے۔ جب وہ سمجھ گیا کہ خلیفہ کا آدمی اصل میں ایک دھوکے باز سید ہے، اس کوشش میں لگ گیا کہ اسے گرفتار کر لے۔ اپنے مطابق وہ ترکوں کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میرا گھر جلا کے چل دیا۔ تو اب وہ آدمی گیا کہاں؟ پہاڑوں کی طرف گیا، عبدالعظیم کا پیچھا کرنے۔ کیا کریں؟ عبدالعظیم کو پہاڑوں میں ڈھونڈنا بالکل ایسا ہے جیسے پتھر میں کیل ٹھوکنا۔ رستہ ناہموار اور سنسان ہے، درندے، جانور، برف اور ٹھنڈک اور لال کپڑے والے باقی لوگ عبدالعظیم کی 7 جانیں بھی ہوں، ان میں سے ایک بھی رہ نہیں پہنچے گی۔ ہم بھی کوشش کریں تو بیکار ہے، خلیفہ کو بھی یہ بات منوانی پڑے گی۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ تم لال کپڑے والوں کے قیدی ہو شیخ، تم نے جو کچھ افسانوں میں سنا ہے آج اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہم ان افسانوں کو حصہ ہیں جو ہمارے خدا بابا خرم سے ہیں۔ عرب کا کیا کام ادھر؟ کوئی حکم ہے ہماری دیا؟ آسانی سے مرنا چاہتے ہو یا مشکل سے؟ جو شخص گمراہی کی طرف چل پڑا ہے آسان موت کی تمنا فضول ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تم لوگ عرب کے خون کے پیاسے ہو تو میں بھی عرب ہوں۔ ہم بلا وجہ عرب کو نہیں مارتے۔ تمہارا جرم یہ نہیں ہے کہ تم عرب ہو۔ عرب میرے علاقے میں کیا کر رہا ہے؟ تم میرے گھر میں ہو اور میں پہاڑوں میں پناہ گیر ہوا ہوں۔ اگر تم نے ذرا سی بھی چھو چرا کی تو ایسے مارے جاؤ گے جیسے 100 بار مارے گئے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ مزدور۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ یقیناً جانتے ہوگے کہ عباسیوں کی حکومت میں عربوں کا کام گدھوں کی طرح کا ہے۔ ترکوں نے ان تمام منصبوں کو گھیر لیا ہے۔ پھر تو ترک زندہ باد۔ تم تاجر ہو۔ کتنی لڑکیاں صرف جزیہ نہ دینے کے بہانے خلیفہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ایک تم جیسا ہی ایک دن میری دلہن کو حجلے عروسی سے لے گیا۔ ان سب باتوں سے نظریں چنانا چاہیے نہیں۔ تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر گھسیٹوں گا زمین پر، جو سلوک متوکل عباسی نے ہمارے خدا بابا کے ساتھ کیا تھا۔ بہت خوب سید، اپنی تمام تر ہوشیاریوں کے باوجود جال میں پھنس گئے۔ تمہاری گردن ٹوٹ جائے۔ جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ اصفہان کی 1 سال کی مال و متاع اور مجوسیوں کے علاقوں کے جزیے سب دھواں ہو گئے۔ اس کی وجہ تم تھی اور وہ تبرستانی مادر پدر آزاد شخص، اور اب ایک وطن پرست گروہ کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ مگر تسلی رکھو کہ اگر میری 7 جانوں میں سے ایک بھی باقی رہ جائے تو تمہیں خلیفہ کے حوالے کر دوں گا۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ عرب، عرب ابن عرب۔ تمہارا میرے نام سے کیا واسطہ؟ خدا کی پناہ عرب کی جہالت سے۔ میرا نام عبدالعظیم، کنیت ابوالقاسم، چوتھے جد امام حسن مجتبی۔ پہلے پہچان لو، پھر مجھے خلیفہ کے حوالے کرنا۔
अगर तुम्हारा दिल करे तो आले अली और आले अब्बास की दुश्मनी की कहानी तुम्हें सुनाऊं। इसका सुनना बेकार नहीं जाएगा, कम से कम कैद की तंगी को कम कर देगा। मेरे कान फालतू नहीं है, 1000 दफा सुन चुका हूँ, बेकार बातें मत करो। وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. मुंतसर मेरे बाद खलीफा होगा, मुंतसर के बाद मुअत्तज और मुअत्तज के बाद मुअय्यद। हम खलीफा की रकाब के मुलाजिम हैं, चाहे विलायत अहदी हो, चाहे अमीरी, चाहे नौकरी। वल्लाह आलम, हमारी नज़र में बाप के बराबर में विलायत अहदी शहद की तरह और इसके बगैर जहर हलाहल है। हसद करना औरतों में बुरी बीमारी है। आपको चाहिए کہ اہل حرم پر سب سے پہلے نظر رکھیں۔ ہمارا حرم قوس قزح کی طرح ہے، تو عرب، رومی، فارس، ہندو ہر رنگ کی ہے۔ کبھی دو عورتیں ایک جیسی ایک رنگ کی دیکھو تو ڈرو اور ہمیں بھی ڈراؤ۔ انصاف کی بات ہے، رومی بیوی نے اچھا ولیعہد تیار کیا ہے۔ رومی تدبیر و حکمت میں مشہور ہے۔ میری بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ دل چرانے میں بھی ترک اور عرب سے آگے ہیں۔ ایک لمحے کو میں نے بخاری کو دیکھا تھا، ان لوہے کی سلاخوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، لگتا ہے وہ خالی ہاتھ آیا ہے۔ جاؤ اسے بلاؤ، میں مہمان خانے میں منتظر ہوں۔ ایک مہلت دے رہا ہوں تاکہ اپنی غلطی کی تلافی کر سکو۔ جی حضور۔ اپنا لشکر لے جاؤ اور تفلیس پہنچو۔ اسحاق نام کا ایک شخص آل امید سے خروج کر چکا ہے، اسحاق کا سر چاہتا ہوں۔ آپ سر کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ حکمت جانتے ہو؟ کچھ آپ پیر مار کے چند چیزیں پڑھی ہیں کتابوں میں۔ سر کی بیماری غلط فکر، خواب و خیال اور دل کی بے چینی کی وجہ سے ہے۔ اہل و عیال سے دوری کا غم اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ تم میری بیماری کی دوا لڑائی جھگڑے ختم کرنا اور اہل و عیال کے پاس چلے جانا سمجھتے ہو، لیکن ایک بات سن لو، جب تک میرے بازو میں دم ہے میں عرب کے ان ستم گر خلفاء سے لڑنے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اے بندے خدا، میں خود اپنے آپ کو غریب الوطنی اور ہجرت میں اس لیے ڈال چکا ہوں تاکہ ظلم سے لڑوں۔ یہ کیسی جنگ ہے جو اب لڑ رہے ہیں؟ جیسے خلفاء تم لوگ کا پیچھا کرتے ہیں، تم جیسے سید اپنا گھوڑا لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ کہاں؟ الیمان یا تبرستان، کیونکہ دماون کی پہاڑیاں گرم اور پرسکون اور خلفاء کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تلوار نجات کی آخری راہ ہے، ظلم سے لڑنے کو ترک مت کرنا، مگر خیال رکھنا کہ ظلم سے رہا ہونے کی اس راہ میں تم خود ظالم نہ بن جاؤ۔ یہ لو کھاؤ۔ میرا اسیر ساتھی زیادہ ضرورت مند ہے۔ تم ان جملوں اور کنائیوں سے ہمارا امتحان لینا چاہتے ہو؟ اسے قید کر لو۔ زندانیش کنی۔
حور مزدار، تمہاری حمد و ثنا کرتے ہیں کہ تو پاک سے رشت انسانوں میں اترتا ہے، اور ان کی زبان میں کنویں سے راستہ، تاریکی سے روشنی، اور برے فکر و خیال سے اچھے فکر و خیال نکالتا ہے، تاکہ لوگ غلاظت اور گندگی کے بندے نہ ہو جائیں۔ اب اس وقت ایک برائی نیک ہواؤں پر ہجوم کر چکی ہے، اسے بھگا دے اور ہواؤں کو آزاد کر دے، کیونکہ ہوائیں تمہیں دوست رکھتی ہیں اور تیرے گو نگوں چہرے کو پسند کرتی ہیں۔ آزاد کر دے، ہواؤں کو آزاد کر دے حور مزدار۔ ظاہراً علویوں کی طرح عدالت کا دعویٰ رکھتے ہیں، بابک کی ہار کی وجہ جاننا نہیں چاہتے۔ اب بہت بول چکے ہو بوڑھے، جاؤ۔ اور ابوان کی؟ تم زبردستی آزاد ہوئے بوڑھے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میرے ہاتھ خداوند علی کے اولادوں میں سے ایک کے خون سے رنگے جائیں۔ جاؤ۔ یہی علی جنہیں تم لوگ خدا کہتے ہو اور چاہتے ہو کہ انہیں اور ان کے دین کو ایرانی کر دو، وہ عرب ہیں۔ ان کے مذہب میں قیدی پر ظلم کرنا حرام در حرام ہے۔ جاؤ بڈھے۔ نہیں دیکھ رہے ہو اندھی راہیں ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ حجاز۔ عرب ہو؟ ہم نے بہت عرب دیکھے لیکن تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ مجھے تقدیر نے مجبور کیا کہ یہ اوڑھنا بچھونا بدلنا پڑا۔ ہاں، تمہاری پیشانی پہ لکھا ہے کہ چند دن تم کرد میں ہی رہو۔ بہت شکریہ، مجھے جانا چاہیے، جلدی میں ہوں۔ جانتے ہو وہاں کتنی برف گر رہی ہے؟ ہوا تو سارے عالم کی سانس لینے کی چیز ہے، برف بھی وہ سفید لباس ہے جو پروردگار پہاڑوں کو پہناتا ہے۔ یقیناً تم عرب ہو۔ عرب کو جانتی ہو؟ ہاں، عرب یعنی تلوار اور اونٹ۔ ایک ایک بندہ تمہاری طرح کا شیر اور دہر و دیار سے لگا ہوا۔ ہمیں کہاں لے جا رہی ہو شیری بی بی؟ مجھے جلدی ہے۔ جاؤ، اگر مرنے کی اتنی ہی جلدی ہے تو جاؤ۔ عرب کیا جانے کہ نیکی کی قدر کیا ہے۔ تم جو اتنی ہوشیار عورت ہو، تمہیں ڈر نہیں لگا کہ مجھ جیسے مشکوک شخص کو پناہ دے دی تم نے؟ نہ تم مشکوک و پرسرار ہو، نہ میں کوئی دولت مند خزانے والی۔ کس چیز سے ڈروں؟ نہ کوئی مال ہے میرے پاس کہ تم شاید چرا کر لے جاؤ، نہ حسن و جمال کے مجھے ناپاک کر دو، نہ کوئی راز رکھتی ہوں کہ ڈروں تم فاش کر دو گے۔ جو بھی ہو میری بلا سے، دوست یا دشمن، کافر یا مسلمان، جب خدا نے کوئی مہمان بھیجا ہے تو ضرور مجھے اتنی ہمت و جرت بھی تو دے گا کہ میں اس کی خدمت کر سکوں۔ تو ہے کون؟ ماہ بی بی، جو تقدیر سے ایک مرد چاہتی ہے۔ تمہارا شوہر؟ ہاں، وہ برف میں مارا گیا، میں رہ گئی اس کے بچوں کے ساتھ، اس کی بیوہ ہوں اور نانی بھی ہوں۔ یہ دیکھو، شیر خان کی چورائی ہے۔ ستیہ ناس، ڈر نہیں لگا؟ چوری کر کے اتنا خوش ہو رہے ہو؟ نہیں جناب، یہ نام کی چوری ہے۔ جب بھی داماد لڑکی کے گھر سے کوئی بھی چیز، رومال، شال وغیرہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جائے، دلہن کو پا سکتا ہے۔ اور یہ جو کھال ہے نا، 7 لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے چرا کر لایا ہوں۔
आप लोगों के रस्म रवाज अरब जाहिलियत की रसूमात से कम नहीं है। बचा लो, आगा, माँ बेबी, बचा लो मुझे, बचा लो। सितारा ने साथ दिया है तुम्हारा? भाई मदद की है तो की है, इससे शेर खान और उसके बच्चों को क्या फर्क पड़ता है? मैं चाहता था वो बाखबर रहे। खालाजान, खालाजान, मुझे बचा ले, ये लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, मुझे बचा ले खालाजान। वो बदतमीज और बेअदब लड़का आग लगाता है। आप लोगों को हया नहीं आती? एक बेचारी लड़की पर लश्कर कशी कर रहे हो। ऐ शेर खान, तुम्हारी खाल चुराई है, तुम्हारी इज्जत लूट ली है। ये शर्त तुम लोगों ने खुद मुअय्यन की थी। क्या ये मर्दानगी है कि अपने कौल से फिर जाओ? अगर सौरभ अकेला ही ये चोरी करता तो मैं शाबाशी देता। मुझे भी खुशी होती कि हमारा दामाद काबिल आदमी है। खाल चुराने के लिए सितारा की मदद हासिल की, शर्म की बात है। अगर अकल रखते तो समझ जाते कि वो काबिल आदमी है। तुम खुद बताओ, उसकी मदद के बगैर सौरभ ये खाल चुराने की जुर्रत कर सकता था? नहीं, ये सितारा की नहीं, बल्कि ये रस्म रिवाज ही गलत है। गलत या सही तुम्हारे लिए होगा। तुम पैगंबर हो कि रस्म रिवाज को बदलो? हमारी नामूस परस्ती में तुम्हारी कोई मदाखलत नहीं होनी चाहिए। तुम जाओ अपनी जगह और दखल अंदाजी मत करो। हाँ सही कह रहे हो शेर खान, बिल्कुल ठीक। तुम कहना क्या चाहते हो? इतनी बातें तुम्हारे शौहर से की? तुम बहरी थी अब तक? मेरा शौहर कब्र में है, जाहिल। अपनी शक्ल गुम करो इससे पहले कि तुम्हारे पाँव काट दूं। तुम मुझे गुस्सा दिखाती हो? तमाशा देख रहे हो? जाओ, जो कुछ अंदर है ले आओ। इसे मत मारो, मुझे मारो। तुम लोग किस दीन और किस मजहब के मानने वाले हो? तुम मुसलमान हो शेर खान? तुम डरे नहीं? तुमने माँ बीबी पर तोहमत लगाई। मैं चाहता था कि तुम लोगों की लड़ाई खत्म करवाऊं, मगर इस लायक नहीं समझा। कम से कम इस शाल की हुर्मत के वास्ते लड़ाई खत्म करो। ये शाल मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा की यादगार है। माफ कर दो, माफ कर दो। मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा, तुम्हें मुबारक हो। मैंने माँ बीबी से बात की है। किस बारे में? इस बारे में कि मुर्दे की पूजा करना बंद करो और दोबारा शादी कर लो। मैं आपके होठों के कुर्बान जाऊं। औरत बेवा रह जाए गुनाह नहीं है। माँ बीवी की तरह की औरत जिस घर में भी हो वो जन्नत है, उसकी कदर करो। कबूल कर लिया? हाँ, मैं जब चला जाऊं रिश्ता मांग लेना। मैं एक बात कहूं, आप अपना सीगा पढ़ लो आगा जान। मैं जो सीगा पढ़ूंगा वो बातिल है। क्यों? क्योंकि तुम हसद करोगे। तो फिर जल्दी जाओ, जाओ जाओ। सितारा बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया कि गलत रस्म रवाज से जंग की। खुदा ने हमें अक्ल दी है कि अपनी तकदीर हम खुद लिखें। ना ही अंधी तकलीद में खुशबख्ती है और ना अंधेपन के खिलाफ करने में बदबख्ती है।
अच्छा खुदा के बंदो, आप लोगों का दीदार भी एक सादत थी। आपस में मोहब्बत से पेश आइए। खुदा अच्छे दिल वालों को पसंद करता है। मैं आपको नहीं भूलूंगा, आप भी मुझे मत भूलिएगा। सुनो, जल्दी करो, आगा बर्फ के दरमियान ना रह जाएं। खुदा हाफिज शेर चीता। खुदा की कसम, जब भी कोई अरब मिला है या औरत मांगता था निकाह के लिए या घोड़ा सवारी के लिए या तलवार अपने इस्तेमाल के लिए, मेरा ख्याल है आगा जान अरब नहीं थे। हाँ, सालों से इसको जानती हूँ। जब कभी कोई मन्नत उठाई, नजरों ने आज दिलाई है, मेरे तसव्वुर में इस शख्स का चेहरा आया। क्या आदमी को पहचानने वाली याददाश्त है तुम्हारी। वल्लाह ये हबीब खुदा सैयद और औलाद पैगंबर हैं, इन्हें आवारा वतन किया हुआ है। खाना खराब लोग। ईताफ हमारे लिए वजीर नहीं था, बाप था। अफसोस कि अब्दुल अजीम को काबू न कर सका। मगर अब देखें तुम क्या कर सकते हो वसीफ। अब्दुल अजीम रे नहीं पहुंचना चाहिए। कैसे मारा तुमने इसे? हुजूर, ये मारा नहीं गया, खुद मरा है। सफर हज की सख्त थकन ने अमीर अलहाजी ताख्त को इतना ज़ईफ कर दिया कि जैसे ही सफर हज से वापसी पर बगदाद पहुंचे, मौत ने इनको मोहलत ही न दी। इसका मतलब हजरत मलिकुल मौत ने पहल कर दी और तुमसे पहले हाजी का शिकार कर लिया। एक राज के फाश न होने के लिए उसके राज होने का ही इनकार करना पड़ता है। ईताक दुनिया से गुजर गया और खलीफा ने उसके गम में सोग मनाया। ईताक के जनाजे को बड़े एहतराम के साथ दफन किया जाए और उसकी याद में पुरजोश मजालिस बर्पा की जाए। कोई पेश इमाम मिंबर पर बैठे और ईताक की नेक खसलतों के बारे में तज़किरा करके तलब मग़फ़िरत करे। इसे जानते हो? हाँ, कुछ कुछ। यहां तक भी सिर्फ शेर खान की ख्वाहिश के मुताबिक। मैंने कई तवील सफर किए हैं, कोई मुलाजिम और मुहाफिज नहीं था। वापस लौट जाइए आप लोग। आगा जान, अगर इजाजत हो तो हम आपको पानी या किसी आबादी तक पहुंचा दें। सौराब, क्या तय पाया था? ये कि बर्फ से गुजर जाएं, सो गुजर गए। आगा जान, ये जो जनाजा वबाल बना हुआ है, इसका क्या करेंगे? अरे ओ शख्स, क्या इस जनाजे से कोई शर्त लगाओगे? क्या करें भाई? मुकाबला करें ताकि पता चले कि किसकी ताकत ज्यादा है। हाँ, सुना तुमने? मुझे मालूम है तुम गधे जैसी ताकत रखते हो, मगर निढाल हो। हम भी मुहाफिज हैं, हमें भी लड़ाई आती है। लकड़ी हमारी तलवार है। अगर तुम में हिम्मत है तो हमारे आगा के साथ लड़के देखो, पता चल जाएगा कितने बड़े बहादुर हो। चरवाहे का काम अंबिया का शुगल है भाई। इस दुनिया में जहाँ इंसान भेड़िए बने हुए हैं, ऐसे में दुम्बे के साथ बैठना वो नेमत है जो हर एक को नसीब नहीं होती। दिल हार गए? हाँ, हार गया दिल। तुम्हें इससे क्या? बस चुप करो और ज्यादा बात नहीं करो। यहाँ से सैयद के पास एक ऐसा नौकर है कि हर बारिश रास्ता जानता है। क्या ये सच है? हाँ, ये सारे रास्ते जानता है।
جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ ایک پھوڑا خلیفہ کے مقام خاص پہ ظاہر ہوا ہے اور طبیبوں کے کثیر معالجے کے باوجود اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکا۔ قربان جاؤں، یہ جو شخص ہے یہ وہی ملعون ہے جو کہ دعویٰ رکھتا ہے کہ دار بابک کے مقام پر جبریل اس پر وحی لے کر آئے اور ان کو پیغمبری کے عہدے پر مبعوث کیا ہے۔ کہتا ہے ذوالقرنین ہے۔ محمود فرج نیشا پوری تم ہی ہو؟ اس دعوے کے پیچھے کیا غرض ہے تمہاری؟ روئی کے گولے؟ تمام انبیاء کی آمد کا مقصد ایک ہی تھا۔ انبیاء کا فرض ہے کہ لوگوں کو خیر کا رستہ دکھائیں۔ یہ دنیا شیاطین کا فریب دینے والا جال ہے۔ یہ تخت، یہ تاج، یہ محل اور اتنے سارے فضول امامے اور یہ حقیر لباس، یہ سب شیاطین کے ہتھیار ہے۔ پیغمبروں کے پاس کرامات اور معجزے ہوتے ہیں، تم کیا رکھتے ہو؟ یقیناً تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی ورد پڑھ دوں اور تمہارا دانا اپنا منہ کھول دے۔ شیطانوں کے محل میں آنے سے پہلے مجھے جبرائیل نے وحی کی تھی کہ تم سے معجزہ مانگیں گے، اور خدا فرماتا ہے کہ تمہارا معجزہ چھپی ہوئی سوچ اور خیال کو پڑھنا اور انسان کی حقیقی شکلیں دیکھنا ہے۔ تم حیوانات کے محاصرے میں ہو۔ یہ گیدڑ ہے، یہ بھیڑیا ہے، یہ کتا ہے، یہ گدھا ہے۔ اگر چاہو تو ایک ایک کی سوچ اور خیال تمہیں بتا دوں۔ تمام پیغمبروں نے اپنی پیغمبری کو ثابت کرنے کے لیے سختی اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، مگر یہ کہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تم بھی جیسا کہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم پیغمبر ہو تو ثابت قدم رہو۔ شاید ایک دن میں بھی تمہارے اصحاب میں سے ہوں گا۔ اس کے اصحاب کو دار بابک کی جگہ پر پھینک دو۔ ویل للمطفنین، ویل للمطفنین۔ ملعون، تم نے اپنے اصحاب کے چہروں کو دیکھا، ان کا ویٹ سن رہے ہو۔ ویل للمطفنین۔ ہر بندہ 10 تھپڑ اپنے پیغمبر کو مارے تاکہ تم لوگوں کو معاف کر دوں، جلدی۔ اے ابلیس، اے گمراہ، اے جادوگر، سیاوش کا اقبال بلند ہو۔ سیاوش پاک تھا، آگ اس پر پھول بن گئی۔ سیاوش کا اقبال بلند ہو۔ خوش آمدید۔ میرے خیال سے کوئی درویش ہو جو کشف حقیقت کے لیے سفر کر رہے ہو تم لوگ، یا پھر تاجر جو کہ اپنا خسارہ کر چکے ہیں۔ شیخ، خوش آمدید ہے شیخ، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ جب سے روشن کا آئی ہے میرا ہوش جا رہا ہے۔ روشن کی گستاخی نے تمام لوگوں کو غصہ دلا دیا ہے۔ میں نے تم سے پہلے اس کی تنبیہ کی ہے۔ دیکھو،
इस साल के हमारा स्यावश उनकी शहजादी रूशंक होगी। लोग इसको शहजादी सौदागे की जगह इस पर अंडे बरसाएंगे। बेशक इस मौसम में रूशंक एक फर्मा बरदार बकरी होगी। ये कौन सी जगह है शेख? तुम्हारे लिए जो कि अहले इल्म हो, ये एक अजीब सरजमीन है। फुर्सत को गनीमत समझो, बहुत सी चीजें सीख जाओगे कि मेरे काम दोनों कीमती हैं। भाग जाऊं तो तुम्हारी मुर्गी पर भी रहम नहीं करूंगा। मैं थक गया हूं, तुर्कों की हरकतों से थक गया हूं। खलीफा और उसके ऐवान और अंसार से नफरत करता हूं। सब अपने पराये जंग करने पर आमादा हो गए। जिंदगी के लिए दो आशिक दिल और ऊंट का दूध और रोटी का टुकड़ा और प्याज काफी है। मगर तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम समझती हो कि मैं मस्त हो गया हूं, लेकिन तुम्हारी भूल है ये। क्या सोच रही हो तुम? बोलो, क्या सोच रही हो तुम? बोलती क्यों नहीं हो? सोच नहीं रही, देख रही हूँ। मसीहा राजी नहीं हुई? मसीहा वो बातें मस्ती की हालत में करता है जो आम हालत में नहीं कर सकता। जिंदगी का एक तल्ख तरीन हिस्सा भी है जिसका नाम बेदारी है। मैं इतनी पीऊं कि मर जाऊं। रोशन का ये कदम उठाना मतलब ये कि खुरूज किया है उसने, मतलब ये कि खलीफा के खिलाफ कयाम करना। उसको मेरे हवाले न करो तो सबके सब इस जुर्म के शरीक होंगे। मैं जाऊंगा और हाकिम इस्फहान और उसके लश्कर के साथ आऊंगा। मर्द, औरत, घर, भेड़, बकरी सबको तबाह कर दूंगा, सबको तबाह कर दूंगा। हम कह रहे हैं कि नहीं है, तुम कहते जा रहे हो कि है। हर घर को देख लिया, हर कोने कोने को छान मारा, कुआं, तबेला, अस्तबल, मुर्दानियां सब देख ली हमने। हम क्या करें? ढूंढो, उस रोशन को ढूंढो। तुम लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, किसके लिए अपनी आवाज को हल्का कर रहे थे? तुम जैसे एक नाफहम शेख के लिए। हमें से क्या क्या रूशंक कहाँ है? वो रूशंक तो तुम्हारे अपने हाथ में थी, उसे बांध के रखते, कहीं न जाती। ए कुत्ते! अरे 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 गैर मुस्लिम शेख, अपनी तलवार उसे दिखा रहे हो जो कि अगर वो अपना सीना तान ले तो 100 जवान उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अब तक तुम्हारे साथ मुसलमान और भाई की तरह थे। कोई छोटी सी ऐसी खता तुमने हमसे देखी जो खलीफा के खिलाफ हो? अगर ऐसा है तो तुम हमारी गर्दन काट सकते हो। रूशंक भाग गई है शेख, किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ऐसी बातें करना मायूब है। तकरीर खत्म हो गई, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम लोग। एक सैयद के बलबूते पर इतना उछल रहे हो, इसकी बातों ने तुम्हें गुमराह कर दिया है। शेर हो गए हो। मैं जाता हूं और शेरों के लश्कर के साथ आता हूं। उठो, तुम्हारा जज तुम्हें सजा दे। जहां जाते हो फितना खड़ा कर देते हो। ये लोग कहां अरब से बात करने की जुर्रत कर पाते थे? जब उनकी नजर अरब पर पड़ती थी तो बैत के पत्तों की तरह लरस जाते थे। एक दिन में इतना बड़ा फर्क आ गया कि शोर करें और मुझे उंगलियां दिखाएं। चलो।
फिर वही अपनी गर्दन को टेढ़ा किया हुआ है और मुझे देखे जा रहे हो। पहचान लिया? उतरो, आज रात को यहीं रुकेंगे। क्या आवाज है। बहरे हो, नीचे उतरो। तुम समझते हो कि मैं नहीं पहचानूंगा कि तुम्हारी आंखों में क्या है? आंखें घुमाओ अपनी। जैसे तुम कहो। उस अरब के लिए जिसने अब तक रेत और टीले देखे हैं, यह आबशार और ये मंजर जन्नत है। इतनी सारी खूबसूरती को छोड़कर मुझे देख रहे हो और मुझे ही देखे जा रहे हो। आखिर क्यों? तुम ज्यादा देखने के काबिल हो। इंसान हूँ, नाक़िसुल अक्ल हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह का एक आदमजाद हूँ। मेरा कौन सा हिस्सा देखने वाला है? तुम्हारे अजीब गरीब अफकार, तुम्हारे जिद पर मबनी फैसले, तुम्हें देख कर जाना कि दो जिद चीजों का एक जगह होना महाल नहीं। मजलूम हो उस खलीफा के मुकाबले में जो कि तुम पर जुल्म करता है, और जालिम हो उसके लिए जिसने तुम्हें बचाया है। तुमने नजात नहीं दी, खुदा ने नजात दी है। इस बात से इनकार नहीं। बेशक सही कह रहे हो, मगर खुदा खुद नहीं आया बर्फ हटाकर तुम्हें बचाने, न मेरे हाथ को हुक्म दिया। मैं चाहता तो ऐसा न करता। क्यों ऐसा नहीं किया? खुदा ने नहीं चाहा। तुम अपने आप को इस आबशार से नीचे फेंक दो और तुम्हारा सर किसी पत्थर से टकरा के फट जाए, फिर कहना कि खुदा ने ऐसा चाहा था। मुझे तुम्हारे हाथों की जगह तुम्हारे मुंह को बंद करना चाहिए था। जब तुम्हें कह रहा हूं कि मत देखो मुझे, तो चुपचाप मान जाओ और खुदा और दीन पैगंबर की बातें करके क्या चाहते हो? एक लगाऊं ताकि तुम्हारी ये चुपती निगाहें देख ना सके? न बात करूं न देखूं। चलो हाथ तो खोलो ताकि कम से कम तुम्हें सहमत हो। खोल दूं ताकि तुम भाग जाओ? कैसे भाग जाऊं? मुझसे डर क्यों रहे हो? तुमसे नहीं डर रहा हूं, अपने आप से डर रहा हूं कि कहीं तुम्हें जान से न मार दूं। जिंदा अब्दुल अजीम की कीमत है, न कि मुर्दा की। हक है कि अली की औलाद से डरना चाहिए, जवान से बूढ़े तक। मैंने नहीं सुना कि किसी सीना बा सीना जंग में किसी ने उनको हराया हो। औलाद अली की बात हुज्जत होती है। खोल दो। शराब ना होती तो जिंदगी पत्थर के जैसे होती। पियोगे? हम बगैर पिए ही मस्त हैं। हराम है? वो बात पूछो जो नहीं जानते। वाकई मैं नहीं जानता, खुदा की हिकमतों को नहीं समझ पाता। शराब हराम होती तो पैदा क्यों किया? मैं शराब में कोई ऐब नहीं देखता। जो कुछ देखता हूं सब हुस्न है। तुम्हारी हया का पर्दा हट जाए ये ऐब नहीं है, तुम्हारी अक्ल जाय हो जाए ये हुस्न है। ये गलत बात है सैयद, बिल्कुल गलत। तुम इल्म के समंदर हो मानता हूं, मगर शराब की खासियत वो जानता है जिसने खुद पी हो। तुमने पी है? अस्तगफिरुल्लाह। शराब पीने का उस्ताद मैं हूं। बहुत से लोग मस्त हो जाते हैं, एक पीता है तो बेहया हो जाता है, या तुम्हारी बात के मुताबिक बेअक्ल बेशऊर, मगर एक पाक सच बोलने वाला और नर्म दिल हो जाता है। बाज लोग शराब पीकर फरिश्ते हो जाते हैं। यकीनन तुम उन्हीं फरिश्तों में से एक हो। नहीं सैयद, मैं जब शराब पीता हूं तो आशिक हो जाता हूं। रोशन!
जमीन और आसमान का खेल तो देखो, एक दिन शिकार और एक दिन शिकारी। अब देखो हकीर और कैदी होने का क्या मजा है। हकीर, वादा क्या हुआ तुम्हारा? तुम्हारे जद तुम्हारी कमर पर मारे, जो उनकी बात और वादे पर थूक दिया तुमने। हमने कुछ नहीं किया शेख, मर्द बनो। तुमने शराब पी है, अब इसका नुकसान बर्दाश्त करो। कल रात जब तुम मस्त थे तो इस खातून को पुकारा था, तब वो आ गई और इसने तुम्हें बांध दिया। मैं मदहोश था, मगर तुम तो होशियार थे ना, और तुम्हारे हाथ भी खुले हुए थे। उसने मुझे बांध दिया और तुमने कुछ भी नहीं किया। कसम खाओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? कोई चीखो पुकार करते, शोर मचाते, मैं होश में आ जाता। खुदा ने चाहा होगा, हाँ खुदा ने, वरना मेरे दिल और जुबान पर हुक्म करता था कि मैं कोई शोर शराबा करता। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मैं जमीन वाला हूँ सैयद, जमीन का अपना कानून है। जोर और ताकत ना हो तो कुछ ले जाओगे। मैं आदमी हूँ, आसमान और आसमान वालों से अलग हूँ। दुआ करो कि दोबारा मेरे हाथ ना लगो सैयद। वो आपका आशिक है खातून, उसकी निजात का वाहिद रास्ता आप हैं। आपका दिल कीने से भरा हुआ है, आपकी अरबों से बेजारी बेकार है। इंसान के अच्छे और बुरे होने को उसकी जात से नहीं देखा जाता। तुम्हारा नबी और मेरा नबी दुनिया में आए ताकि लोगों को प्यार और अमन और मोहब्बत से रहना सिखाए। मैं इस रास्ते से बेनियाज हूँ अरब आदमी। इससे पहले कि मुझे पछतावा हो, चले जाओ। जा रहा हूँ रोशन। वो शेख तुम्हें याद है जो बहुत ज्यादा अपने आप को कुछ समझता था, जिसने रुखसाना को 70 इराकी सिक्कों में खरीदा? जानते हो रुखसाना ने अपने साथ क्या किया? नहीं। उसने अपने आप को मार डाला। वो मासियार की मंगेतर थी। मासियार, तुम बताओ, इसको रुखसाना का खून बाहर कितने सिक्कों में देना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है रूशंक, किस जैसा बगैर छिला हुआ शेख इस शक्ल सूरत के साथ कितने तक का होगा? ये देखना होगा कि क्या हुनर जानता है। एक मर्द की शक्ल रखते हुए इसका वाहिद हुनर गाय भैंस की तरह जान रखना होगा, मगर एक औरत की शक्ल में रक्स करे तो शायद इसको किसी अय्याश के हाथों बेचा जाए। एक मुकम्मल लश्करी जर्रार है, आप सिर्फ इशारा करें, एक ही रात में आपको रे का बादशाह बना देंगे। तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम बूढ़े हो गए हो। अब तक फितनों से हाथ नहीं उठाया तुमने। तुम क्या मेरी तरफ से वकील थे जो गए और लश्कर तैयार कर दिया तुमने? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, आपने खुद कहा था कि मुझे एक लश्कर चाहिए जो शेरों को पछाड़ने वाला हो। थी कभी, मगर अब कोई आरजू नहीं। मुल्क रे की खासियत ही ऐसी है कि आदमी के होश उड़ जाते हैं और जोश खरोश खत्म हो जाता है। तुम जाओ अपनी लड़ाई के दीवाने। मैंने तुम लोगों को गाली नहीं दी, अपने आप को गाली दी है। एक उम्र गुजार दी मैंने, कौन से किले फतह कर लिए। जब भी तलवार चलाई है मुझे ऐसा लगा है कि खुद पर जख्म लगाया है हर बार। आप बस या अली का नारा लगाए और फिर देखें हम लोग क्या करते हैं। मैंने अपने नारे लगा लिए, अपनी तलवार चला ली, अपने कर्ज अदा कर दिए। नहीं मेरे चिशहजाद भाई, नहीं, जिहाद कर्ज नहीं है, वाजिब है। हाथ हो गए,
आप जाग रहे हैं आगा? खुफिया राजों में से एक राज मेरे सीने में छुपा हुआ है जिसने मेरी नींद हराम कर दी है। आप 3 इमामों के पास हाजिर रहे हैं। इमाम रजा, इमाम जवाद, इमाम हादी के शागिर्द रह चुके हैं, तो फिर छुपे हुए और आश्कार को यकीनन जानते होंगे। जो कोई भी इसरार खुफिया का इल्म रखता हो, महरम इसरार है, तो फिर राज को संभाले रहें। जब तक ये राज उसके अहल को नहीं पहुंचता तब तक मेरी नौकरी अधूरी है। मेरे मुताबिक इस राज का असली मकाम ईरान है। शायद मेरी उम्र साथ ना दे हसन। तुम इस राज को पहुंचाने के लिए बेहतरीन शख्स हो मेरी नजर में। खुफिया राजों को संभालने के लिए अंबिया जैसा सीना चाहिए। मैं अगर बहुत हिम्मत करूं तो शायद तबरिस्तान वालों को यकजा कर सकूं। सब्ज लिबास में अली वालों का क़याम और तबरिस्तान के शियों की सरबराही तुम्हारे हाथ से पूरा होने वाला ख्वाब है हसन। शियों की 4 इमामी, 5 इमामी, 6 इमामी लड़ाइयां बहुत गमगीन दास्तान रखती हैं। याद रखो हसन, इमामत कुर्बानी का गोश्त नहीं है जिसको हम लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अपने मौला इमाम हादी के कौल के मुताबिक एक ऐसी हकीकत खोल रहा हूं कि शायद हमारे जद की उम्मत की सबसे बड़ी हकीकत हो। जिस तरह अंबिया की रिसालत मुस्तफा की बेसत पर खत्म होती है, शियों की इमामत भी अली के 11वें बेटे के साथ खत्म हो जाएगी। उनका नाम मेहदी है और जमीन के इख्तिताम तक जिंदा रहेंगे, मगर पर्दे गैब में एक दिन ज़ुहूर करेंगे और आलम बशरियत के आखिरी निजात दहिंदा होंगे जो फसाद और बेइंसाफी से बचाएंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। बंद करो। आका मैं शर्मिंदा हूँ, एक बहुत जरूरी बात अर्ज करनी है। हम्माम में? शर्मिंदा हूँ, लेकिन अगर मेरी गुजारिश फौरी और जरूरी ना होती तो इस तरह दखलंदाजी ना करता। हाँ बोलो। हादी अभी अभी इत्तला मिली है दोबारा क़याम करना चाहता है। उसका इरादा है कि ईद उल फितर के दिन खुरूज करेगा। हादी हमारे मामूर करदा अफराद के मुहासरे में है। वो अगर गुस्ल खाने भी जाए तो फौरन हमें खबर हो जाएगी। हुजूर, आप अब तक सोच रहे थे कि आप हादी पर मुसल्लत हैं। हादी ने भी जहाँ तक हो सका है इस फुर्सत से फायदा उठाया है। क्या क्या है उसने? वो सोने का अंबार जो कि रे और कुम से उसके लिए भेजा गया था, उसने उन सब से असला बनाया ताकि अपने मुरीदों को मुसल्ला कर सके। अगर तुम्हारी बात सही हुई तो हादी का खून हलाल है। मुल्क रे की वजूहात शरिया की रकम से एक ऐसा सब्ज लिबास वालों का लश्कर तैयार हो सकता है कि न अबू मुस्लिम खुरासानी के काले लिबास वाली फौज उसे टकरा सकती है, न बाबा खुर्रमदीद की लाल कपड़ों वाली फौज। वजूहात तबरस्तान और कुम और काशान सब जरिया बनी है। हादी के लिए अब्दुल अजीम से पढ़कर कौन सा अमानतदार मोतबर होगा? बुगाई बुगाई। जी हुजूर। अब्दुल अजीम के भागने का दाग अब तक जिंदा है। जाओ हादी के घर के चप्पे चप्पे को छान मारो, एक एक जगह तलाश करो उसे। वसीफ की खबर के मुताबिक हमें मुल्क रे का खजाना चाहिए। जी हुजूर। अब्दुल अजीम का नाम तो तुम्हारे लिए अजाब का फरिश्ता बन गया है। आखिर कब तक हकीर किए जाओगे? और डालो ताकि सो जाऊं, क्योंकि गम से भरा हुआ हूं। कहाँ? मेरी इजाजत के बगैर कहाँ जा रहे हो? कुछ अमूर व अफाल जबरी होते हैं। अमूर जबरी के लिए इजाजत लेने में कराहत है। बैतुल खला जाने के लिए खलीफा से इजाजत लेना मेरे ख्याल में बेअदबी है। इब्लीस, मोहम्मद का मशकूक रवैया हमें डरा रहा है। इस बच्चे की आंखों में हौलनाक रकाबत देख रहा हूँ। मैंने उसे मुंतसर का लक़ब दिया, यानी नुसरत करने वाला। मुझे कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुस्ताजल है।
ہر ولی عہد کا خاصہ مردہ خوری ہے. حرامزادے، حرامزادے. باندھ دو. میں تجھے ابھی بتاتا ہوں تمہیں ناچنے گانے کے لیے خریدا ہے کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں. چھوڑوں گا تمہیں کو. کتنے کا ہے؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے جناب. آپ کو نوکر چاہیے؟ میرے پاس بہترین ہے. اس قداور کو دیکھیں، اونٹ کا وزن بھی اس کے کاندھوں میں ڈال دے تو بہانہ نہیں کرے گا. ہر کام کو فوراً انجام دے دے گا. جاؤ اپنے بازو کو زور دکھاؤ جناب کو. جاؤ جاؤ. کیسا ہے یہ جناب؟ پسند آیا آپ کو؟ نہیں، یہی بہتر ہے. کتنے؟ اب کیا بولوں میں، 6 سونے کے سکے دے دو. یہی کل رقم میرے پاس ہے. تمہیں آزادی مبارک ہو شیخ. اے خدایا، اے خدایا، تم مر گئے. اے غلام، مر جاؤ، مر جاؤ. آپ کا غلام ہوں میں، مجھے پناہ دے دو. آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں. شیخ، مجھے نوکر نہیں چاہیے. تم میرے بھائی ہو. کچھ کپڑے ہیں جو ہم دونوں پہنا کریں گے. کچھ روٹی، دہی اور پیاز ہے جو دونوں ساتھ کھایا کریں گے. صرف شراب مت مانگنا، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا.